कार्यकर्ता पार्टी के बड़े नेता लगातार भवानीपुर में कैंप भी कर रहे थे। আপনাদের একটু অপেক্ষা করালাম কারণ পার্থ চ্যাটার্জি সুব্রত বক্সির আসার কথা ছিল, কিন্তু যেহেতু আকাশ খুব মেঘলা এবং আপনারাও সকাল থেকে অপেক্ষা করছেন এবং কাউন্টিংটাও প্রায় শেষ হয়ে গেছে, সেই জন্য আমি প্রথমেই ভবানীপুরের সকল মা ভাই বোনেদের, আমার সকল সহকর্মীদের এবং সারা বাংলার মানুষ, ভারতবর্ষের মানুষ যারা এই রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তাদের সকলকে আমাদের ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, অভিনন্দন এবং সালাম জানাচ্ছি। আপনারা জানেন ভবানীপুরে ভোটার খুব কম এবং এখানে 1,15,000-এর মতো ভোট পোল হয়েছিল টোটাল, এবং তাতে বরঞ্চ জঙ্গিপুর এবং শামসেরগঞ্জে ভোটার সংখ্যা অনেক বেশি এবং ওখানে পোলও হয়েছে 80%, 70%। কিন্তু ভবানীপুরে এটা চিরকালের ধারা। আমি যখন 1911 সালে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বাই ইলেকশনে কন্টেস্ট করেছিলাম, তখন আমি 54,000 ভোটে জিতেছিলাম রেকর্ড ব্রেক করে, কারণ তখন 44% ভোট পড়েছিল টোটালটাই আমাদের। এবং 2016-তে আমি জিতেছিলাম সম্ভবত 25-26 হাজার ভোটে, এবং গত জেনারেল ইলেকশনে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এই 57% शुरुआती करियर में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब भी उन्हें 54,000 वोट उन्हें मिला था। और अमूमन भवानीपुर में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम रहता है, शमशेरगंज और जंगीपुर में ज़्यादा वोटिंग हुआ है इस बार भी। अबाउट 60,000। এবং আমি সকল ভোটকর্মী সহ সকলকে, বিশেষ করে একদিকে বর্ষা চলছে, ममता बनर्जी 60,000 वोटों से একদিকে जीती কোভিড है। চলছে, এবং তার মধ্যে ভবানীপুরের মানুষ যেভাবে ভোট দিতে বেরিয়েছেন, বয়োজ্যেষ্ঠ থেকে শুরু করে ছোটরা, এবং অল ল্যাঙ্গুয়েজ, কোন ওয়ার্ডে एक আমরা तरफ হারিনি। बाढ़ का कहर है तो दूसरी ओर कोरोना का कहर है, उसके बीच लोग बाहर आकर अपना मतदान प्रयोग किए, उसके लिए ममता बनर्जी आभारी है। আমি যখন 16-তে 44 এতেও কন্টেস্ট করেছি, আমি একটা দুটো ওয়ার্ডে ভোট কম পেয়েছি, কিন্তু এবারে একটি ওয়ার্ডেও কিন্তু আমরা হারিনি, এটা মাথায় রাখতে হবে। আর ভবানীপুরের ভোট পার্সেন্টেজ হচ্ছে 1-2 वार्ड में ममता बनर्जी को कम वोट मिला है, लेकिन किसी भी वार्ड में वो हारी नहीं है। মুসলিম আছে, পাঞ্জাবি আছে, গুজরাটি আছে, মারাঠি আছে, উড়িয়া আছে, সবাই মিলে আছে, মারোয়ারি আছে, বিহারি আছে, ইউপি আছে, বাঙালি অনেক ভোটার আছে, সবাই মিলে মিলিতভাবে ভোট দিয়েছেন শান্তিপূর্ণ। भवानीपुर में हिंदू, मुसलमान, सिख, बिहारी, मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, हर समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं और सभी ने आकर अपना मतदान किया इस बार। জায়গাটা ছোট্ট কিন্তু তার বৃত্তটা অনেক বড়। वो अपना आभार प्रकट करती है उन लोगों को जिन्होंने मतदान किया और ममता बनर्जी को समर्थन किया। ভবানীপুরের মানুষ দেখিয়ে দিল, সারা বাংলা আজকে ভবানীপুরের दिखे তাকিয়ে ছিল, এবং सारा बांग्ला भवानीपुर ने साबित कर दिया, पूरा बंगाल भवानीपुर की तरफ देख रहा था। একটা ইলেকশনে আমরা জিততে পারিনি, সেটা কোর্টে কেস আছে, কেন জিতিনি, কি জিতিনি তার অনেক কারণ আছে, সেটা কোর্টে কেস আছে, পরে ডিসাইড হবে, সাব জুডিস বলে বলছি না। অনেক চক্রান্ত চলেছিল, इस बार साबित हो गया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जगह कहाँ है। पिछले चुनाव में पूरा चुनाव जीतने के बावजूद एक केंद्र से ममता बनर्जी हार गई थी, लेकिन वो क्यों हार गई थी उस बारे में कोर्ट में पूरा मामला है, उसको लेकर विचार किया जा रहा है और लोगों को सच सामने दिखेगा आने वाले दिनों में। भवानीपुर के लोगों को धन्यवाद दे रही है ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेसेর সব পরিবার থেকে শুরু করে সারা বাংলার মানুষের পরিবারের থেকে শুরু করে আমরা সকলে তাদের মনে রাখবো। আমাকে অনেকে বলছিলেন ভি দেখাচ্ছে, আমি ভি দেখাবো না, আমি তিনটে দেখাবো। ममता बनर्जी, उनकी पार्टी, उनके नेता, उनके समर्थक पूरी तरह आभारी है भवानीपुर के लोगों का कि वो इस परिस्थिति में भी बाहर निकल के अपना मतदान प्रयोग किए। আমি তিনটে দেখাবো। 3 মিন্স আমরা তিনটে সিটে লড়াই করছি। 3 মিন্স আমরা তিনটে সিটে লড়াই করছি। তিনটে সিটে আমরা লড়াই করছি, জঙ্গিপুর, শামসেরগঞ্জ। ভবানীপুরের রেজাল্ট আউট হয়ে গেছে, हम तीनों जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं।
जंगीपुर, शमशेरगंज और भवानीपुर, और तीनों ही एक तरह से ही महत्वपूर्ण है ममता बनर्जी के लिए और उनके पार्टी के लिए। আমরা প্রায় 15,000 ভোটে জিতছি। কাজে 1, 2, 3 মানুষকে ধন্যবাদ দিন, মামাটি মানুষকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। शमशेरगंज और जंगीपुर का जो चुनावी नतीजा है वो भी काफी अच्छा है। ইলেকশন আছে, বাই ইলেকশন। আমি আজকে এই শুভ দিনে বাই ইলেকশন 4টে नाम घोषणा करते चाहिए। अभी आने वाले दिनों में 4 जगहों पर बाई इलेक्शन होना है और उसी बारे में कैंडिडेट्स का नाम डिक्लेयर कर रही है ममता बनर्जी। राजकिशोर गोस्वामी, शांतिपुर से राजकिशोर गोस्वामी वो तृणमूल के उम्मीदवार होंगे। ওরা গোস্বামী পরিবারের এবং ঠাকুর পরিবারের আর কি ওদের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং बोध किशोर गोस्वामी हैं, ठाकुर परिवार से आते हैं। वो शांतिपुर से चुनावी मैदान में उतरेंगे तृणमूल कांग्रेस के होकर। উদয়ন গুহ দাঁড়াচ্ছেন দিনহাটাতে এবং খড়দায় দাঁড়াচ্ছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। तृणमूल के एक और दिग्गज नेता उदयन गुह वो चुनाव में भागीदारी लेंगे और टीएमसी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे दिनहाटा से। একটু পার্থ আর বক্সির জন্য অপেক্ষা করছি। এই তিনটি নাম আলোচনা করে ক্লিয়ারেন্স হয়ে গেছে। আমি একা কিছু করি না এবং সেই জন্য ওরা আমার কাছে 4টে 4:30 নাগাদ আসবে। আমি কথা বলে আমি গোসাবা कैंडिडेट नाम अनाउंस करব। আমার কাছে कैंडिडेट गोसाबा के कैंडिडेट का नाम कुछ ही देर में ऐलान किया जाएगा। বাপ্পাদিত নস্কর, এই নস্কর জয়ন্ত নস্করের ছেলে। আর একটা নাম আছে, एक का नाम है वास्तविता नस्कर। সুব্রত মণ্ডল। দুটো নাম আমাদের কাছে আছে। দুজনের মধ্যে কে টিকিট পাবে সেটা আমরা दूसरा है सुब्रत मंडल। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনারাও প্রেস অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেছেন। আপনাদের সবাইকে বলবো আকাশে মেঘ বজ্রধ্বনি, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কিছু করবেন না। আস্তে আস্তে সবকিছু ভালোভাবে হয়ে যাক। আমরা মিছিল করতে সবাইকে বারণ করেছি। ममता बनर्जी पत्रकारों को भी धन्यवाद व्यक्त करती हुई চলে গেল সেটা ঠিক আছে, যেমন আমি ছেড়ে দিলাম। কিন্তু যেহেতু অনেক জায়গায় ফ্লাডও হয়েছে এবং এই দুদিন আরো বেশি বৃষ্টি হওয়ার কথা আছে, তাই আমি মনে করি আমাদের সবচেয়ে আনন্দ হবে যদি আমরা বন্যায় যারা আক্রান্ত তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সেবা করতে পারি। সেবার কাজটা যেন আমরা করতে পারি। আমাদের আনন্দটা আমরা সেবার কাজে নিয়োজিত করব। সামনে পুজো, সকলকে অনেক অনেক শারদ পুজোর শুভেচ্ছা। বলি বৃষ্টি আসছে তো কাটটা শুনবো। हिंदी मैं आप लोग को कहने चाहूंगी कि बंगाल का जब इलेक्शन शुरू हुआ था तब से बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी हमारा पार्टी का खिलाफ में हुआ था। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कॉन्स्पिरेसी करके हम लोग को हटाने का बंदोबस्त किया था। लेकिन हम लोग आभारी हूँ पब्लिक के ऊपर कि जनता ने हम लोग को जीत दिया था। मैंने खुद इलेक्शन में लड़ा था लेकिन वो कोर्ट में केस अभी हाजिर है। इसी के लिए सब जुडिस केस में हम कोई मंतव्य नहीं करेंगे। क्या क्या कॉन्स्पिरेसी नहीं हुआ था, मेरे को पाँव में भी चोट कर दिया था जैसे हम इलेक्शन में कंटेस्ट ना करें। उसका बाद बाई इलेक्शन आया। हम चुनाव आयोग का प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने टाइम का अंदर 6 महीने का अंदर जैसा सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का, और हमारा कोविड भी इधर में इतना नहीं है, कम है, कंट्रोल में है। तो उन्होंने जो इलेक्शन हम लोग को कंसल्ट करके चीफ सेक्रेटरी को कंसल्ट करके इलेक्शन अनाउंस किया। एक साथ में 7 हो जाने से अच्छा ही होता, ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। खाली हमारा इलेक्शन का कमीशन को पास एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि 10 तारीख से 20 तारीख तक हमारा पूजा चलेगा। पैंडल में बहुत सारे जनता आएगा। वो टाइम अगर कैंपेन कोई ओपनली ना करे तो अच्छा है। कैंपेन करना है तो 20 तारीख से करें, 27 तारीख तक, 30 तारीख में इलेक्शन है। हमारा पार्टी का ओर से हम ये चाहेंगे कि पूजा का टाइम पब्लिक को कोई डिस्टर्ब ना किया जाए, कि हमारा ये फेस्टिवल सबसे बड़ा है। हमारा देश का जितना जनता है, जनता का प्यार मोहब्बत मेरे को मिला, आशीर्वाद मिला, दुआ मिला, सुख मिला। मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। और देखते हैं आसमान का रूप। आप लोग एक काम करो, ऐसा ऐसा घर चले जाओ प्लीज। थैंक यू।
तो ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। जीत के लिए शुक्रिया उन्होंने अदा किया भवानीपुर की जनता का भी। और अब देखिए ये विक्ट्री साइन दिखाते हुए बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। और लगे हाथ उन्होंने इस बात का बेजिक्र कर दिया, पूरे चुनावी माहौल को उन्होंने आज समेट दिया अपने इस कुछ मिनटों की बातचीत में। तापस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, विक्ट्री साइन दिखा रही हैं, बड़ी जीत है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा ममता बनर्जी ने, लेकिन आज पूरे चुनावी माहौल को उन्होंने समेट दिया अपने इस कुछ मिनटों के भाषण में या फिर मीडिया से बातचीत में। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया, आपको याद होगा कैसे उनके पैर में चोट लगी थी, उस बात का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। तापस जी देखिए, ममता बनर्जी एक मजे हुई राजनीतिक नेत्री हमें सभी को मालूम है। और इनका ये जो जीत है, खासकर ये सिर्फ उनके लिए जीत मायने नहीं रखता था, मार्जिन मायने रखता था। और उन्होंने 2011 का अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। 58,000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने लीड लिया और अपनी जीत दर्ज कराई है। हम सुबह से जिस बारे में बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी एक नेशनल लीडर बनना चाहती है, टीएमसी को सेंट्रल स्टेज में लाना चाहती है, और कहीं ना कहीं उसका शुरुआत आज भवानीपुर के इस रिजल्ट से हो गया। और मेरी बात कुछ नेताओं से हो रही थी तृणमूल कांग्रेस के, उनका ये कहना है कि अब आगे देखना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब आगे दिल्ली ही है उनका डेस्टिनेशन, जिसको सामने रखकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी आगे काम करेगी। ठीक है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ठीक है, जो स्टेट के चुनाव होते हैं तापस और जो केंद्र के चुनाव होते हैं उन सबके अलग अलग मायने, अलग अलग तरीके से वो चुनाव लड़े जाते हैं। लेकिन भवानीपुर से ममता बनर्जी जीत जाएंगी ये सबको लग रहा था। जीत का अंतर कितना बड़ा होगा इस बात पर नजरें थी। अगर उन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है, इतनी बड़ी जीत हासिल की है, इसके मायने क्या क्या निकाले जाएं? अगर तीन बड़ी बातें मैं आपसे पूछूं तो देखिए, अगर ममता बनर्जी अपने रिकॉर्ड को तोड़ी है तो उन्होंने एक चीज़ तो साबित कर दिया। उनको जिस तरह से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि भवानीपुर से वो भाग रही थी, कि भवानीपुर में वो हार सकती है, तभी नंदीग्राम से जाकर उन्होंने फाइट किया। ये साबित हो गया कि भवानीपुर के लोग आज भी ममता बनर्जी की लोकप्रियता को मानते हैं और ममता बनर्जी काफ़ी पॉपुलर हैं भवानीपुर में, लोग उन्हें पसंद करते हैं। दूसरी बात यह है, इस मार्जिन से जीतना शोभन देव चट्टोपाध्याय ने यहीं से इसी क्षेत्र से उन्होंने जीता था 27,000 वोटों से, उनसे दुगना वोट। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो के तौर पर ये पार्टी के अंदर ही उनका कद और भी बड़ा हो गया। और तीसरा ये है कि जिस तरह से अपोजिशन पार्टी के नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो और बाकी सारे पूरे देश भर से जिस तरह से उनको बधाई दी जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक काम करेगा कि वो शायद आने वाले दिनों में अपोजिशन अलायंस की फलक्रम बन सकती है, एक चेहरा बन सकती है। चाहे वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो या ना हो, वो डिबेटेबल इशू है, वो आगे जाकर समझ में आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अपोजिशन लीडर्स भी उनको समर्थन कर रहे हैं नैतिक तौर पे, ये भी साफ हो गया।